Hello students, welcome back to my channel. Today here I am taking class for class 9th ICSE Movement and Locomotion. I am teaching you from your book only. This book that is consists of your candidate ICSE Biology for class 9th. Now the next chapter your movements and locomotion. As you know already, what is movement? Change in position with respect to a definite point is called movement. What is movement? Change in position with respect to a definite point is called movement, and the movement takes place in body parts, then they are called as the curvature movements. What are curvature movements? Means what is movement? Change in position with respect to a definite point, it is called the movement. And curvature, when the movement takes place in the body parts, when the movements takes place in the body parts, then it is called curvature movement. And locomotory movements, when the whole body moves from one place to another. As animals, we move from one place to another in search of food, shelter, and to fulfill our needs. That is what called the locomotory movement. See, when the body as a whole moves from place to place, then they are called locomotory movement. They are very important in animals because animals, they have to move from one place to another in search of food, shelter, and protect themselves, and in search of the various their important works. So movements not only contribute the enjoyment of the life commercially immeasurably means there are so many, बट दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, बल्कि उसको हमें मेंटेन भी करना होता है. जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनको कर्वेचर मूवमेंट है. जब पूरी बॉडी हमारी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको हम लोकोमेट्री मूवमेंट्स है, बट दे आर एसेंशियली फॉर मेंटेनिंग. सो मूवमेंट्स दे हेल्प द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. हमें जो बाहरी और आंतरिक, मतलब बाहर है हीट, लाइट, टेम्परेचर, वेदर, रेन, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत होती है. और एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट, जैसे बाहर बहुत सर्दी है तो हम घर के अंदर आते हैं कि हमें इससे प्रोटेक्शन मिलता है. और मूवमेंट के लिए वर्टिब्रेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें दो कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स एंड जॉइंट. इसमें हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, स्केलेटन, मसल्स और जॉइंट. इन तीनों की सहायता से हमारी बॉडी जो है मूव करती है एक प्लेस से दूसरे. नाउ फर्स्ट हियर वी एम स्टार्टिंग विद द स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम. व्हेन ऑल द हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, then they are known as skeletal. What is skeletal system? All the hard parts of the body form supporting framework. That is what called the skeletal system. And this skeletal system, it consists of what? Bones and cartilage. Skeletal system is made up of what? Skeletal system is made up of bones and cartilage, and all the body parts that form the framework of the body together, they form the skeletal system. Now, how many types of skeletal systems are there? एक्सोस्केलेटन और एंडो. एक्सो मीन्स आउटसाइड द, एक्सो मतलब जो शरीर के बाहर होते हैं, एंडो मतलब जो शरीर के अंदर होते हैं. तो जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहरी पार्ट्स में होते हैं, प्रेजेंट आउटर सरफेस मतलब बाहरी सतह, ऑल द हार्ड पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, whatever they are present, they constitute exoskeleton. जैसे सेल्स ऑफ मोलस्क हैं, काइटिनस प्लेट्स हैं आर्थ्रोपोड्स की, फिशेस के स्केल्स हैं, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, एव्स में, पक्षियों में फेदर्स होते हैं, जैसे बर्ड में क्लॉज होते हैं, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, हूव्स, सींग होते हैं मैमल्स में, जैसे काउ, बफेलो, गोट वगैरह, इनमें सींग्स और हूव्स होते हैं. ये तो ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन दे आर डेड एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. एक्टोडर्मल मतलब आउटर सरफेस. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स लेयर्स का 3 लेयर्स है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल. तो बॉडी का कौन सा भाग किस लेयर से बनता है उस हिसाब से हम इसको एक्टो, एंडो और मीजोडर्मल कहते हैं. एक्टोडर्मल मतलब आउटर लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है, और वहीं एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो हमारा हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जिसमें बोन्स और कार्टिलेज होता है. ये हमारा कार्टिलेज, इसको एंडोस्केलेटन होते हैं.
ये बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं लिविंग्स में, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आप देखिए क्या डिफरेंसेस है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। देखिए एक्सोस्केलेटन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एंडो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एक्सोस्केलेटन दे आर ऑलवेज देयर, जैसे हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, हूव्स हैं। एंडोस्केलेटन दे आर ऑलवेज लिविंग। एक्टोडर्मल मतलब ये दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट स्केल्स ऑफ फिशेस, whereas endoskeleton they are mesodermal in origin, whereas it consists in shells, scales, feathers, claws, hairs, nails. It consists of bones and cartilage and they are made up of organic and inorganic compounds. Exoskeleton they are made up of keratin protein. इसमें दो पॉइंट्स आपके आते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेल्स, स्केल्स एंड वेदर, दे कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are formed by keratin protein, they provides better protection against external, इसमें हमको external injury से protection मिलता है, they give support and permits the better movement and locomotion. अब main functions क्या होते हैं skeleton? It gives support to the body, it gives shape to the body, it protects the body, हार्ड बोनी बॉक्सेस, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारा ब्रेन बॉक्स हमारे ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट। दूसरा बोन्स, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट मसल्स। रिजर्वायर मतलब बोन्स रिजर्वायर कैल्शियम का काम करते हैं, जिसमें कि कैल्शियम रिजर्वायर जो हमारे बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये बाहर आता जाता है। According to the needs, it maintains calcium. Production of blood corpuscles, hemopoiesis, RBCs, WBCs का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। They are blood corpuscles produced in the bone marrow. Hearing, ear, इंटरनल ईयर हमारे 3 बोन्स का बना होता है, मैलियस, इंकस और स्टेक, तो ये हमें सुनने में हेल्प करते हैं। मिडिल ईयर मेड अप ऑफ 3 टाइनी बोन्स हेल्प्स इन हियरिंग, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं। ब्रीदिंग में स्टर्नम और रिब्स, जो हमारा ये स्टर्नम होता है, ये रिब्स होता है, ये हमारा स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ये हमारे रिब्स हैं। ये हम जब सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करता है, फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। और फॉसिल्स जो होती हैं ये बोन्स की होती हैं, इससे हमको ऑथेंटिक प्रूव होती हैं, इससे एवोल्यूशन में हमको मदद मिलती है कि पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, किस तरह से थे, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है पैलेंटोलॉजिकल स्टडी से। अब हम आते हैं एंडोस्केलेटन पे, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो है बॉडी का, दिस बॉडी जो एडल्ट में होता है ये 206 बोन्स का बना हुआ होता है। एडल्ट में इसका टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट दे आर 206, और जो एंड 270 बोन्स इन द न्यूली बॉर्न चाइल्ड। एडल्ट में 206 होते हैं, बच्चों में 270 होते हैं। बोन्स इसमें ये होते हैं, कार्टिलेज होता है, परमानेंट कार्टिलेज, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज, जैसे पिना है, टिप है, जो हमारे कान होते हैं, नोज का ऊपरी हिस्सा होता है, ये हमारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब इस स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर एक्शन में हमारे गर्डल्स और हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब। एक्सियल स्केलेटन हमारा स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आती हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स और ईयर ऑसिकल्स आते हैं, ठीक है। दी वर्टिब्रल। अब स्केलेटन हेड, हेड जो स्कल है हमारा, ये कितने बोन्स का, 28 बोन्स का बना होता है। इसमें हेड में क्या होता है, हेड को जो ब्रेन बॉक्स होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। फेस, ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स हमारे कान में होते हैं। 3 बोन्स होती हैं, मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ ईयर ऑसिकल्स, जो हमारा मिडिल ईयर बना होता है, मैलियस, इंकस और स्टेप। 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं, ये ईयर ऑसिकल्स बनाती हैं। फेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, हेड कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। अब जैसे क्रेनियम, ये हमारा लार्ज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। इसके जॉइंट्स को ही हम सूचर्स कहते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को ही हम सूचर्स बोलते हैं। ये बैक पार्ट क्रेनियम होता है, होल होता है, जिसके फोरामेन मैग्नम कहते हैं। जैसे फोरामेन मैग्नम अगर आप कहेंगे, फोरामेन मैग्नम क्या होता है, आप ये देखिए स्कल का डायग्राम है, ये इस स्कल में जो ये स्पेस जहां से हमारा डडस निकलता है, इसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। ये हमारा बेन फॉक्स है, ये हमारे फेस, ठीक है। अब इसमें आप देखिए
फोरामेन मैग्नम होता है, होल स्पाइनल कॉर्ड होता है, फेस होता है, फेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, फेस की बोन्स ये भी इमूवेबल जॉइंट से जुड़ी होती हैं एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ की जो बोन्स होती हैं वो जो आर्टिकुलेट्स मीन जॉइंट्स, आर्टिकुलेट्स मूवेबली, तो वो जो सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल होता है हमारे स्कल में और बाकी सारे जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं। बोन्स फेस जो होता है ये सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन में, डाइजेस्टिव, मतलब खाना खाते हैं हम, खाना निगलते हैं तो ये फेस मुंह से ही तो खाते हैं। फेस बोन्स दे आल्सो प्रोटेक्ट द सेंसरी ऑर्गन्स, हाउसिंग मतलब जिसके अंदर रहते हैं सेंस ऑर्गन, स्क्रेनियम ब्रेन बॉक्स के अंदर ही हमारे आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सब हमारे कहाँ रहते हैं, ये सारे हमारे स्कल के अंदर। ईयर ऑसिकल्स का 6 बोन्स होते हैं जो कि 3 स्मॉल, मतलब मैलियस, इंकस और स्टेप, ये हेल्प करते हैं जो हमारे साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में ले जाने में ये हमको हेल्प करती है। अब अनदर बोन हायर्ड बोन, हायर्ड बोन जो होती है ये ऐसी हायर्ड बोन जो होती है, इट सपोर्ट्स अवर टंग, इट इज सिंपली सस्पेंडेड फ्रॉम टेम्पोरल बोन बाय मींस ऑफ लिगामेंट, मतलब टेम्पोरल बोन लिगामेंट से ये सस्पेंडेड होती है जो हायर्ड एपरेटस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई जॉइंट नहीं, सिर्फ अनदर बोन हायर्ड ही हमारी बॉडी में एक ऐसी होती है। अब इसके बाद आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम में जो होते हैं फर्स्ट 7 वर्टिब्रास जो होती हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है, इसकी लंबाई पूरी 70 सेंटीमीटर्स होती है एक्सेस में, ये पूरा एक्सेस में होता है जो हमारी बॉडी के एक्सेस में प्रेजेंट होता है। वर्टिकल ब्राउन मिस्ट प्रोसीजर, इट इज न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये इसमें पर्टिकुलर शेप अपने आप आता जाता है, ये नीचे से स्लाइटली कर्व होता है। बैलेंस पॉसिबल अपराइट, ये कॉर्डल वर्टिब्रा जो होती है हमारी रेस्ट करती है हमारे ये पेक्टोरल गर्डल के ऊपर। पहले 7 वर्टिब्रास सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, उसके बाद जो 12 वर्टिब्रास होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, दे आर 12 इन नंबर। उसके बाद जो लंबर वर्टिब्रास होती हैं वो 5 होती हैं। इसके बाद सैक्रम, ये भी 5 होती हैं लेकिन ये फ्यूज होती हैं। और कोसेक्स के 4 वर्टिब्रास होती हैं और ये भी फ्यूज होती हैं। अब इसमें दे, अब द वर्टिब्रल कॉलम इट इज फॉर्म्ड बाय 33 बोन वर्टिब्रास, इट एनक्लोजेस वर्टिब्रल न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल होती है, इसी न्यूरल कैनाल में ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर से जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड हमारा इसी में ही जाता है। जैसे ये देखिए इधर, ये आपको, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर जो छेद न्यूरल कैनाल होता है उसके अंदर से निकलता है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड में हर जॉइंट से पहले, कार्टिलेज से पहले, ये हमारे जो होती हैं, ये हमारी ये सेंसरी नर्व्स होती है, जो स्पाइनल नर्व्स ये यहाँ से बॉडी के दोनों साइड्स में निकलती है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेज डिस्क होती है जिससे कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सर्वाइकल नेक में 7 वर्टिब्रास होती है, थोरेसिक वर्टिब्रास 5 बार 12 इन नंबर, लंबर वर्टिब्रास एब्डोमेन में होती है 5, पेल्विस पॉट 5 वर्टिब्रास फ्यूज्ड होती हैं, कोसेक्स रीजन में लोअर पेल्विस होती है उसमें 4 वर्टिब्रास, टोटल मिला के हो गई हमारी 33। देखिए जैसे सर्वाइकल 7, थोरेक्स 12, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड काउडल, कोसेक्स कोसाइजर काउडल, कोसेक्स वर्टिब्रा जो होती है, कोसेक्स जो होती हैं वो 4 होती है। तो 5 सैक्रल वर्टिब्रास दे आर फोर्स्ड टू फॉर्म ए सिंगल बोन, उसको हम सैक्रम बोलते हैं, ये सैक्रम बनाती हैं। और जो ये 4 काउडल जो कोसेक्स वर्टिब्रास फ्यूज होती हैं उसको हम कोसेक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर है हमारा, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑल द वर्टिब्रास सेम होता है, लेकिन जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, भाई रिंग होता है, होल होता है, ये होल होता है वर्टिब्रल कॉलम में, इस होल को, होल इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल, होल इन द वर्टिब्रल कॉलम, दिस होल इज कॉल्ड द न्यूरल कैनाल। एंड फ्रंट वर्टिब्रा वेंट्रल साइड में जो होती कंसिस्ट होती है सेंट्रम होता है, यानी कि जैसे ये वर्टिब्रा कंसिस्ट होती है, तो जो वर्टिब्रास हमारी होती हैं, तो जो सेंट्रम होता है वो हमारा वेंट्रल साइड में होता है। जो लॉन्गर वर्टिब्रास होती हैं इसमें जैसे आप देखिए ये वर्टिब्रा, ये जो सेंट्रम फेस होता है ये हमारा वेंट्रल साइड में होता है, और जो ये उठी वर्टिब्रा ये सेंट्रम हमारा वेंट्रल साइड में होता है, और जो उठा हुआ पोर्शन होता है ये हमारे डॉर्सल साइड में होता है। अब इसमें आप देखिए जो हमारा थिक, जो वर्टिब्रा सेंट्रम हमारा वेंट्रल साइड में हुआ, अब इट इज ए वेरी थिक हैविंग फ्लैट अपर एंड लोअर, पोस्टरोलेटरल, मतलब पोस्टरोलेटरल यानी कि साइड में,
ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये पोस्टेरियर साइड है। तो इसकी तरह ये पोर्शन जो होगा ये हमारा पोस्टीरियर लेटरल साइड्स कहलाता है। तो इसमें जो होता है न्यूरल आर्क होता है जो कि टू पेडिसल और लेमिना का बना होता है। अब प्रोजेक्टिंग प्रोसेस यानी कि जो निकले प्रोसेस होते हैं ये बैकवर्ड होते हैं। जैसे ये है प्रोड्यूस वर्टिब्रा, ये सेंट्रम, जैसे आप ये देख रहे हैं ये सेंट्रम प्रोसेस है, ये वेंट्रल साइड में है। और जो ये प्रोसेस जो ये निकली हुई है वर्टिब्रा ये हमारे डोर्सल साइड में होती है। न्यूरल आर्क होता है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं। अब इंफीरियर आर्टिकुलेशन प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ होते हैं जो इंफीरियर आर्टिकुलेशन डाउनवर्ड्स प्रोड्यूस, ये हमारे जैसे रेनियस प्रोसेसेस है, ये साइनस प्रोसेसेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर है, ये वर्टिब्रल कैनाल जो हमारी ये जा रही है, ये सेंट्रम कैनाल होती है। ट्रांसफर प्रोसेस पर लेटरली फ्रॉम द, जो लेटरल साइड में ऐसे हमारे ट्रांसफर बीच में ऐसे राउंडेड होते हैं और यू लेटरल प्रोसेस, ये लेटरल प्रोसेस जो होते हैं हमारे ट्रांसफर प्रोसेस बोलते हैं, इनको साइड में होते हैं। तो जो इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना, तो दो वर्टिब्रल के बीच में इंटरवर्टिब्रल फॉर प्रेजेंट होता है जिससे कि लेटरल साइड्स में स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लेटरल साइड्स में ये देखिए जो इसके बेटर्स के लेटरल साइड, ये स्पाइनल नर्व ये जो निकल रही है, इसमें लेबलिंग दे, ये स्पाइनल नर्व्स होती है, ये चीज, ये जो ये नर्व्स निकल रही है, ये स्पाइनल नर्व्स जो हमारे हर वर्टिब्रा के साथ है। सो नेक में हमारे 7 वर्टिब्रास होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं और सेकंड को एक्सिस बोलते हैं, और रिमेनिंग टिपिकल वर्टिब्रा कहलाते हैं। एटलस, एक्सिस और सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, उसको टिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं। ये है आपका टिपिकल वर्टिब्रा, डिटेल डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और थोरेक्स में 12 वर्टिब्रा होती है, नंबर प्रेसेस लॉन्ग, और इन्हीं थोरेक्स वर्टिब्रा में 12 रिब्स निकलती हैं। लंबर वर्टिब्रा दे आर वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग विद वेरी लार्ज वर्सेस। सैक्रल, उसको सैक्रम कहते हैं, ये 5 वर्टिब्रास फ्यूज होते हैं। अब इसमें आप देखिए ये थोरेसिक वर्टिब्रा है जो कि ये बॉडी में होते हैं, ये स्पाइन, ये हमारा बाहर की तरफ है, यही जो रीढ़ की हड्डी में आप बाहर देखते हैं। लंबर वर्टिब्रा होते हैं, इसके सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और कोसिक्स रीजन में जो ये कोसिक्स वर्टिब्रा होती है या 4 या 5 नंबर फ्यूज होते हैं, इसको हम कोसिक्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम में हमारा क्या पार्ट होता है, आप स्टर्नम में आप देखिए ये मिडिल पार्ट ऑफ द फ्रंट चेस्ट वर्टिब्रा, ये आप देखिए ये हमारा जो बॉडी पार्ट है, ये आप ये स्केलेटन इसमें देख रहे हैं, ये स्केलेटन है, ये रिब केज है, तो ये है स्टर्नम। ये स्टर्नम, इसमें क्या होता है मैन्यूबरियम, मैन्यूबरियम कौन सा पार्ट होता है, ये वाला जो एक्सिस पार्ट होता है। बॉडी मिडिल पार्ट, ये आपकी बॉडी है, ये पोर्शन जो है ये बॉडी है। और जाइफाइड प्रोसेस, ये जो एक्स लाइक प्रोसेस बना होता है इसको हम जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये इधर आप इसमें देखिए, ये है आपका, ये बॉडी है, ये आपका एक्सटीरियर प्रोसेस है, और ये आपका जाइफाइड प्रोसेस, ये जो निकला हुआ है ये ट्रायंगुलर पोर्शन निकला है, इसको हम जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं, है? अब इसके बाद आती हैं रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स अलोंग विद द वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग से रिब्स होती हैं। थोरेक्स रीजन में आती है। फर्स्ट 7 पेयर्स रिब्स दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम, सो दे आर नोन एज ट्रोले। पहली 7 पेयर्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती है, ये देखिए, ये जो डायरेक्टली स्टर्नम से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और इसके अलावा एक्सटर्नल पार्ट 7 से पेयर्स होती हैं, जो 7 external parts of the 7th pair of the ribs, they are called false rib, where because the last 2 pair ribs are free in front, hence they are floating। मतलब लास्ट की जो 2 रिब्स होती हैं वो फ्री होती है, आगे जुड़ी हुई नहीं होती, तो उनको तो हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इसके अलावा जो रिब्स ये आपस में जुड़ करके फिर एक बॉन्ड करके फिर ये 1 2 3 4, ये जो मिल के 3 रिब्स हैं, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये डायरेक्ट जुड़ी है, ये ट्रू रिब्स है। अब ये तो इसमें जुड़ी है, अब ये जो है 1 2 3 4 5, ये इसमें, ये तो इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 रिब्स, ये 6th रिब में ज्वाइन है, ये है। तो ये हो गई फर्स्ट रिब, ये हो गई ट्रू रिब्स, और 2 फ्लोटिंग होती हैं जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और ये आगे से नहीं जुड़ी होती, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। Whereas last 2 pair ribs free in front and known as floating rib.
सम पीपल दे हैव एडिशनल रिब होती है, उसको गोरिल्ला रिब कहते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस। अब इसके हमारा पास आता है अपेंडिकुलर, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ये हमारा ये इसमें होता है, ये अपेंडिकुलर है। हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, ये फोर लिम्स की बोन होती है, ये हाइंड लिम्स की बोन होती है। तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें क्या होते हैं, पहले आपका आता है गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और लिम्ब बोन्स। क्या होती हैं? गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और लिम्ब बोन्स। इन सब मिला के 126 बोन्स होती है। अब पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल ये होती है क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल इसी को हम कॉलर बोन कहते हैं, स्कैपुला इसको हम शोल्डर ब्लेड। कॉलर बोन, पेक्टोरल गर्डल जॉइंट, एक्सियल स्कैटर, आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकल विद द स्टर्नम। ये क्लेविकल जो है, ये देखिए, ये क्लेविकल जो है ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। और स्कैपुला बोन जो होती है ये है आपकी क्लेविकल, ये आर्टिकुलेशन, ये आपका ये पीछे का, ये आगे का पार्ट है, ये क्लेविकल, ये जस्ट होते हैं। अब स्कैपुला, ये जो है आपकी ये स्कैपुला है। इट इज लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन प्लेस्ड इन पोस्टीरियर लेटरल, मतलब पीछे और लेटरल साइड में होती है दोनों से। इट इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स बाय मसल्स। ये वर्टिब्रल रिब्स ये सब मसल से जुड़ी होती है। बाकी ये शायद ग्लीनॉइड कैविटी, ये इसमें देखिए ये ग्लीनॉइड कैविटी होती है। इस ग्लीनॉइड कैविटी से हेड ऑफ द ह्यूमरस, फोर लिम्ब का हेड यूनाइट होता है। ये आप ये देखिए, ये है आपका, ये हेड है, ये हेड आपका फोर लिम्ब का हेड ह्यूमरस बोन, ये इसमें यूनाइट होता है। ये है आपका क्लेविकल, ये रिब्स कैविटी, ये इससे यूनाइट होता है। अब आप कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है? ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक्रम रीजन में पैदा होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, उसको हम इनोमिनेट कहते हैं। द लेटरल साइड में ये एसेटेबुलम कैविटी होती है, डिप्रेशंस होते हैं। हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट्स, मतलब ज्वाइन करता है एसेटेबुलम कैविटी में। ये देखिए ये एसेटेबुलम कैविटी है, इसमें फीमर का हेड जो होता है वो इससे ज्वाइन करता है। हेड ऑफ द फीमर ज्वाइन। अपर लिम्स में क्या होते हैं ह्यूमरस, अपर आर्म, टू बोन्स, रेडियल एंड अल्ला, ये बोन होती हैं। और 8 कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजेस होते हैं। देखिए बोन्स होती हैं लिम्ब, फोरमिन में क्या से बोन्स होती है? ह्यूमरस अपर आर्म में 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ला 1 होती है, कार्पल्स 8 होते हैं, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, फेलेंजेस 15 होते हैं। कुल मिला के ईच लेग मिलाकर के, मतलब ईच आर्म में, एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं। लेग में क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा पटेला बोन एक्स्ट्रा होती है, हैज 30 इंक्लूडिंग पटेला बोन इन द नी। इसके बाद इसमें क्या होती है? जो कार्पल्स हमारे 8 होते हैं, इसमें टार्सल्स 7 होते हैं। और टार्सल 7 की जगह जो एक एक्स्ट्रा बोन होती है वो हमारी पटेला की होती है, मेटाटार्सल्स होते हैं इसमें। तो इसमें भी ये देखिए आपका ये पेट्रोकोसल्स है, मेटा आपका ग्लीनाइड कैविटी, ये ग्लीनाइड कैविटी आपकी ये है, यहाँ पर ज्वाइंट होता है। ये हेड है, ये इलियम है, ये ईशियम है, ये प्यूबस है, हाफ पार्ट बाउल है, आधा ये है, आधा फिर ये इधर ऐसे होता है, तो ये बाउल की तरह स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। ये हाफ बाउल, ये ऐसे हाफ बाउल दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। लोअर लिम्स में तो ऐसे होते हैं, फीमर प्रेजेंट इन थाई, पटेला नी बोन होती है, टिबियम फिबुला शैंक में होती है, टार्सल्स एंकल दे, ये टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं, ये जॉइंट्स में होते हैं। अब हम इतने लास्ट स्टेज पर आते हैं, क्या है? जॉइंट। अब जॉइंट्स को हम कैसे करते हैं? वेरियस बोन्स इन द स्कल्पचर आर्टिकुलेट विद ईच अदर बाय मींस ऑफ, आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइन होना, फिक्स होती हैं, किससे होते हैं? एंड द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। व्हाट इज आर्थोलॉजी? द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। जॉइंट्स में कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन होते हैं, जैसे आर्टिकुलेशन कीप्स द बोन फर्मली अटैच। आर्टिकुलेशन क्या होता है? दोनों बोन्स कस के आपस में अटैच्ड रहती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं भाई, जॉइंट्स भी 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, उनको कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं, एम्फिथ्रोसिस भी कहते हैं। और फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, बेसिकली 3 तरह के, टोटली इमूवेबल, मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, 3 तरह के होते हैं जॉइंट। अब इसमें हम आते हैं फर्स्ट फ्राइली, यानी कि इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? ये आपके स्कल में होते हैं। स्कल के जो बोन्स की जो जॉइंट्स होते हैं
वो सारे इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। किससे होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये इनएलास्टिक प्रोटीन होते हैं, बाइंड्स यानी कि दोनों को जोड़ते हैं बोन्स क्लोजली और टाइटली। इसके दो मूवमेंट्स नहीं होते और इन जॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं जॉइंट्स को जो इन टाइटली होते हैं, इन्हीं को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस बोन्स ऑफ स्कल। तो यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ होते हैं? स्कल में होते हैं। और इमूवेबल जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। जैसे पेग एंड सॉकेट, मतलब पेग यानी बॉल एंड सॉकेट, पेग यानी बोल के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑफ टीथ इन द सॉकेट्स। जैसे सॉकेट, जो लोअर जॉइंट हमारा मूवेबल होता है, जो हम मुंह चलाते हैं तभी तो हम खाना खा पाते हैं, अपने खाने को चबा पाते हैं। जॉ बोन्स, दे आर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। इसमें इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट अपर जॉ इमूवेबल होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है। अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आपके कौन से जॉइंट्स आते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस, जो हल्का सा मूव करता है जैसे कि हम झुकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में, जो वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, रिब्स में होते हैं, स्टर्नम्स में होते हैं, वो हमारे जैसे सम सजेस्ट joints which are cartilage joints to bones. These joints only slight movement between the bone. There are two types, symphysis and synchodrosis. Symphysis लेकिन द मिडिल लाइन, मिडिल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें प्यूबिक से, प्यूबिक आपका पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, ये है आपका प्यूबिक पोर्शन। तो इस प्यूबिक पोर्शन फाइसस में जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रा। दे जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो होते हैं ये, तो रिब्स और स्टर्नम, ये देखिए, ये रिब्स जो ज्वाइन होते हैं यहाँ पे, और ये स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम होती है, ज्वाइन जो होते हैं बीच में, ये स्कैपुला होती है, इसी में स्टर्नम जो होती है वो ज्वाइन करती है बोन्स को। दीज बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय द लार्ज पीस ऑफ कार्टिलेज, उनको कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, दे आर ज्वाइन टुगेदर। अब आते हैं आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स आपके कौन से होते हैं? ये आपके ज्वाइंट्स जो होते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स और कार्टिलेजस ज्वाइंट जो होते हैं, ये होते हैं पार्शियली एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। ये आपके मेजॉरिटी आर्टिकुलेशंस किस में करते हैं? तीन तरह के होते हैं। एंड्स ऑफ this for because they are most mobile of the three types of joint. Two bones that participate in a synovial joint covered with a smooth spray hyaline का articular cartilage present होता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है। कार्टिलेज से फ्रिक्शन धीरे धीरे, कार्टिलेज bearing surfaces of bones completely enclosed in a liquid filled with the tightly closed synovial cavity. Synovial cavity internally moist simply synovial movement, जिसमें कि synovial fluid भरा होता है जो lubricates करता है inner joint surface को altogether। तो ये जो साइनोवियल, ये आप देखिए, ये आपका कॉइड है, ये है साइनोवियल फ्लूइड, और ये है साइनोवियल कैविटी, ये है साइनोवियल कैविटी और ये है साइनोवियल फ्लूइड। तो इस साइनोवियल कैविटी और ये होती है, ये है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज इन दोनों को ज्वाइन करती है। ज्वाइन जैसे ये नी और एल्बो में प्रेजेंट, हाइंड जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स और कार्टिलेज इस बोन्स को ज्वाइन करती है। इस बोन्स को ज्वाइन करने का देखिए आपको ये भी डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये हिंज जॉइंट्स, ये बॉइंट्स है, ये जो ब्राउन कलर का है ये है आपका साइनोवियल फ्लूइड, ये बोन का है, बोन मैरो पोर्शन दिखाया है, और ये है आपके मसल्स, ये है लिगामेंट्स जो कि मसल्स को बोन्स से ज्वाइंट करते हैं। तो इन्हें से साइनोवियल जॉइंट समवन इन स्ट्रक्चर है। इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका कहाँ पड़ता है? सिर्फ दो जगह होता है, शोल्डर और हिप में। साइनोवियल जॉइंट्स, इनमें क्या होता है? बोन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड होते हैं और दे सॉकेट्स फॉर्म फ्री मूवमेंट। बोन्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट, सोल्जर जॉइंट, जैसे कि आप हेड बॉल की तरह होता है, ह्यूमरस और सॉकेट ग्लिनॉइड कैविटी होती है। तो इस ग्लिनॉइड कैविटी में जो होता है सॉकेट आपका फिक्स होता है। इस प्रैक्टिकल में फॉरवर्ड यूथ है, जैसे कि आपका ये दिखाया है, ये हेड है और ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ये हेड पोर्शन है और ये ग्लिनॉइड कैविटी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये पूरा बॉल इसमें ये पूरा यू रोल करता है, जैसे आपके रोलर होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रोलर से आप चारों तरफ मूव करते हैं, जो रोलर आपके लगे होते हैं उसी तरह से होता है। शोल्डर जॉइंट्स
हेड बॉल ऑफ द ह्यूमरस, और हिप जॉइंट में फीमर और सॉकेट एसिटाबुलम कैविटी इसमें फिक्स होती है। ये दोनों जॉइंट्स इसी में आते हैं। हिंज जॉइंट्स, ये साइनोवियल फ्लूइड जो आपको ये बताया, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स होते हैं, नी और एल्बो में होते हैं। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट का होता है, पाइवट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये रोटेट करते हैं एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा। जो आपकी एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा आपकी जॉइन होती है साइनोवियल पाइवट जॉइंट्स में, ये है आपकी, देखिए ये है एटलस और ये है एक्सिस। ये एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा जॉइन होती है जिसमें अलाउज हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एज द एरो मूव। मतलब ये साइड में जैसे ये होता है, हम आगे पीछे करते हैं और यूं साइडवेज अपना हर सर हम इसी तरह तो घुमा पाते हैं, आगे पीछे करिए और साइडवेज। ये एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा होती हैं जो कि इसमें जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये होता है पाइवट जॉइंट। एंगुलर जॉइंट्स जो होते हैं साइनोवियल कैविटी, ये रिस्ट में होते हैं और एंकल में होते हैं। मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो वाले जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ये आप देखिए, ये फ्लूमियर ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं फ्रीली मूवेबल, ये जो होते हैं ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बिटवीन कार्पल्स बोन, ये जो अपने हाथ में ये हम करते हैं, ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये जैसे ये मूव कर रहे हैं हाथ पे, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसी तरह से आप मूव करते हैं, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है। और पार्शियली मूवमेंट आपके बोन्स में आपका ये आता है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट आता है। ये आपका आता है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट में होता है, एंकल में होता है। इसके अलावा फिर आपकी जो बोन्स होती हैं, ये देखिए, ये जैसे ये इन दोनों बोन्स के बीच में ये मूवमेंट है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है। ये टार्सल्स और मेटाटार्सल्स एंगल, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल एंगुलर जॉइंट, टू डायरेक्शन साइड, रिस्ट एंड फोर्थ रिस्ट, मेटाकार्पस, मेटाकार्पोफैलेंजेस जॉइंट्स जो होते हैं। ये जो कार्पल्स आपके होते हैं, ये कार्पल्स और मेटाकार्पल, ये जो हाथ की गद्दी होती है यहाँ पे, ये आपके रिस्ट में आएंगे कार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और ये है फैलेंजेस। इसी तरह से एंकल में जो एड़ी होगी उसमें आपके आते हैं टार्सल्स, और मेटाटार्सल्स आते हैं आपके पंजे में, और उंगलियों में आते हैं ये फैलेंजेस जॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जिस जॉइंट फाइसिस में आते हैं। इसी तरह से सैडल जॉइंट जो होता है, ये जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बोथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डेवलप्ड वर्डली। अब ये आप इसमें देखें, ये टोटल आपके नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है। So that is what all about your skeleton joints and movement. Thank you. Again, we will meet in the next video with more important information. Don't forget to like the video, share the video to your friends and relatives. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Thank you.